Assalamualaikum friends, you are watching Electromech Solutions. Please subscribe this channel, share this video with others and press bell icon for further notification. And I hope you will like this video. Let's start today's video. Today's video is about how to check the pedestal or ceiling fan. Or any single phase AC motor. Please watch the complete video, don't skip the video. Assalamualaikum friends, let's start our today topic. Our topic is how to check any single phase motor, induction motor or ceiling fan, etc. So we have a motor of washing machine. Every single phase induction motor has two winding. One is running and second is starting. So we have to find the wire that is connected directly to the starting and running. So we need a digital multimeter or any meter. You can check either with the analog meter also, but we have a digital multimeter. Select your digital multimeter on the diode or buzzer position and first of all check the probes of the meter. As you can see, our probes are connected properly. As you hear the sound of buzzer, check any 2 points. You can see the value 27 ohm. The resistance is showing. You are also hearing the sound of buzzer because the resistance is less than 50. When the resistance will be less than 50, the meter will give the buzzer also. Let's see the another two wires value. 52, the stable value. You have to notice the stable value. These two have the maximum. Let's see, check the another two wires. 27. So these two have the maximum value 52. This means this is the common 27. This is the common. So now you have to find which is the running winding and starting winding. Always starting winding has more resistance than running. It can be equal, but maybe 1 or 2 numbers more than running. These are equal. Test carefully. These are equal. This has the equal value. We check the another motor. We have another motor. We have to find the first common wire. You can see the resistance 86 on the meter. These two wires. Now we can check other two wires. 63. 145. These two wires has the maximum resistance. So it means this black one is a common wire. This black one is connected directly to the running and starting. 62, 87,
this will be equal to 62 and 87, maybe 1 2 3 numbers difference. So as you saw, this is common. Our one lead will go directly to this point. When we will give the 220 voltage, one lead will be directly connected to the black, the other will, purple has 64, gray lead 88. So this purple one is running, this is starting always has more resistance, or sometime you can say more resistance. So this is the starting. We will give the power of starting wire after capacitor. We will connect the capacitor to the starting, and the 220 we will give the 220 directly to this black and purple and to the capacitor. The 220 will give here and here. So this is the way to connect the capacitor. But today our topic is just to find out our motor, either motor is okay or not. So we found that our winding of the motor is okay, all correct. Now we have to check that our winding should not be short with the body, otherwise it will give you shock or it will be short. So you can check all three wires with the body of touch that on the different point of the body. So it means it is not giving any resistance or any buzzer, so our motor is okay. We have the ceiling fan. Check any two wires, 334, connect with other one, no continuity. It means this wire is not connected properly or anything wrong in the winding. Check with the body, it is showing us some resistance. Check with other lead. Yes, it is partially connected with the body, so this fan is not okay. Other two motors are okay. Thanks for watching. If you have any question, you can comment me or you can WhatsApp me. I'll guide you. Like this video, subscribe our channel and share this video with others. Best of luck. तो सबसे पहले हम जब मीटर को सेट करते हैं तो हम मीटर को चेक करते हैं कि हमारा मीटर इसकी ये प्रोब सही कनेक्टेड है। जब हम ये चेक कर लेते हैं, टोन आती है तो हमारी ये प्रोब सही चेक होती हैं। हर मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो रनिंग होती है उसकी कम होती है। ये देखें 308। वैसे जब आप इस तरह रेजिस्टेंस चेक करें, कोशिश करें आपके हाथ टच ना हो। अब ये मैं इधर से निकालता हूँ, ये इसके साथ लगाता हूँ 260। तो ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है रेड वाला। तो इससे एक हमारी जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो हमारी होगी स्टार्टिंग 306। ये 306 है येलो के साथ। $266, तो ये कम है, ये हमारी रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली होती है वो ही मोस्टली मैं कह रहा हूँ वही हमारी
स्टार्टिंग होती है और कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग में चाहिए होता है, रनिंग में नहीं चाहिए होता है। तो ये तो एक हो गया इसका तरीका निकालने का कि कॉमन कौन सी है, रनिंग और स्टार्टिंग। अब दूसरा ये हमारी वाइंडिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, वो चीज़ भी आपको यहीं से पता चलेगा कि अगर तो ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम शो करे, मींस के नज़र आए कि बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो मैक्सिमम शो वो मैक्सिमम ऐसे ही कर रही है। जैसे ये देखो मेरी अभी लीड कनेक्ट नहीं है तो वो 1 शो कर रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं से वो कॉइल डिस्कनेक्ट है। अब अगर हमारी कॉइल रेजिस्टेंस ना शो करे, मीन्स के ज़ीरो शो करे, जैसे ये है तो ये शॉर्ट है। अगर हम इन दोनों को लगाते हैं और इसमें बजर आती है और रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो फिर समझें आपकी शॉर्ट है। एक तो ये हमारा टेस्ट होता है। अब ये देखें, ये मैं चेक करूँगा, एक साइड से अगर आपका हाथ लग भी जाए तो खैर है, दूसरी तरफ से नहीं लगना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस बीच में ना आए। ये जो रेजिस्टेंस होती है ये रनिंग के और एक एंड से लेकर स्टार्टिंग एंड से लेकर रनिंग के लास्ट एंड तक ऑल टुगेदर होती है। मींस कॉमन से रनिंग और कॉमन से स्टार्टिंग को दोनों को प्लस करें तो ये रेजिस्टेंस होती है। कोई बहुत ही कोई 1 2 3 फिगर का फ़र्क हो सकता है। तो ये तो हमने चेक कर ली कि कॉमन कैसे निकालते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। अब इसको हमने टेस्ट जो करने हैं, आपकी एक आप हाथ लगा सकते हैं, दूसरा नहीं। आपने बॉडी के साथ चेक करना होता है कि बॉडी के साथ ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी के साथ शॉर्ट बता रही है, ये ठीक नहीं है। ये आपका फ़ैन जो होगा वो शॉर्ट होगा, तो वो ये जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये आपके पूरे सिस्टम में जाएगी, इसलिए इसको आप, ये आपका ठीक नहीं है। अभी हम दूसरी मोटर दिखाते हैं आपको। अब ये एक मोटर है 60, 83। अब इन दो को चेक कर लेते हैं। 141, तो ये दोनों मैक्सिमम शो कर रही हैं, इसका मतलब कॉमन ये ब्लैक वाली कॉमन हो जाएगी। 60, 83, इन दोनों को प्लस किया, 82। जैसे मैंने कहा था 1-2 फिगर का फ़र्क हो सकता है। तो ये आपकी कॉमन हो गई, ये आपकी रनिंग हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग होगी। तो कैपेसिटर कैसे आपने देने हैं, इसको मैं कैपेसिटर भी साथ बता देता हूँ आपको लगा। फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है 7.5 माइक्रोफैरड। जो कॉमन है उसको आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे और रनिंग को डायरेक्ट सप्लाई देंगे, ये हमारा स्टार्टिंग एंड है। तो कॉमन को आपने दी, डायरेक्ट सप्लाई, इसको आप देंगे थ्रू कैपेसिटर। अब ये देखें, ये आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ये है आपकी स्टार्टिंग। स्टार्ट के लिए स्टार्ट कैपेसिटर इसलिए देते हैं कैपेसिटर से इसको कि ज़्यादा पावर चाहिए होती है। जब आइडल चीज़ होती है, स्टैटिक होती है, उसको रन करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए तो थ्रू कैपेसिटर देंगे। जब वो चल पड़ती है फिर रनिंग में आ जाती है तो रनिंग के लिए आप डायरेक्ट देंगे। तो ये देखें दोनों डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट
इसको चली गई, एक इस कैपेसिटर को चली गई, कैपेसिटर से थ्रू ये आपकी इस मोटर को चली जाएगी और यहाँ दो आप कनेक्ट कर देंगे अपने 220। तो ये इसका सिंपल वे है। इसमें दोनों को डायरेक्ट, क्योंकि वो एक ही दो तारें आपकी आएंगी तो यहाँ जॉइंट करके आप दोनों देंगे, कैपेसिटर को भी जाएगी और इधर से फिर उसकी स्टार्टिंग को चली जाएगी, एक कॉमन हो गई और एक हमारी। ये सिंपल सा वे है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या हम व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये चेक हो गई कि इसको कैपेसिटर कैसे लगाना है। अब बात है कि जैसे मैंने बताया था कि इसको आपने चेक करना है कि ये शॉर्ट ना हो, कोई भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये आपने लगाई, बॉडी के साथ लगाएं, बॉडी के साथ देख सकते हैं आप मीटर में आपको 1 शो कर रहा है मैक्सिमम। कहीं मुख्तलिफ जगहों पे टच करके देखें, कहीं से भी आपको ये नहीं आएगी किसी भी लीड के साथ, क्योंकि ये सारी इंटरलिंक्ड होती हैं तो किसी के साथ भी आपको नहीं आनी चाहिए। ये आपकी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, ये मोटर बिल्कुल ठीक है बाय ऑल मीन्स। ओके, अभी तीसरी मोटर ले आता हूँ मैं। 52 27 27, तो ये हमारी कॉमन हो गई। इसके साथ देखें, $52 बता रहा है, ये मैक्सिमम है, ये कॉमन 27, इसी को कॉमन रखते हैं 27। तो इन दोनों को ऑल टुगेदर करते हैं 52। तो ये कॉमन है, ये 27 है, ये 27 है, ये 28, ये 27। ये एक आधे नंबर का जो फ़र्क है, तो ये आपकी स्टार्टिंग होगी, ये आपकी रनिंग हो गई। तो आपने कैपेसिटर इसके साथ लगाना है, इन दोनों को आपने डायरेक्ट सप्लाई देनी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा शॉर्ट ना हो। एक तरफ से पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपके हाथ की रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए बीच में। ये देखें, मैं मुख्तलिफ जगहों पे लगा रहा हूँ, आपको कोई किसी किस्म की मीटर में रीडिंग चेंज नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हमारी ठीक है मोटर।